So, a warm welcome to all of you guys to the another important weekly general awareness session for your banking examination. That is the day of or the week here will be from 19th to 25th of October 2024 here. So guys, इससे पहले हम लोग already 1st of October से weekly general awareness sessions ले रहे हैं. So if you have not watched those sessions, I would request all of you to watch those sessions also, because this session is in continuity to the sessions that I've already taken with you, that is on Saturday 7 AM here. ओके सो आई होप अगर मैं जीए की बात करूँ तो जनरली आपके मेंस एग्जामिनेशन में जीए प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन योर examination. So let's begin with the thing here, and before I begin, guys, what we do in this session is we used to cover some important topics of the week, ठीक है, which are important for the examination, for your banking examination. So in total आज हम 25 topics discuss करेंगे in the form of MCQs here. Let's begin with the first question. The first question is on Vijaya Kishore Rahatkar ji. She has been appointed as the head of which of the following bodies? The answer, the question, the options are National Commission for Protection of Child Rights, National Commission for Women, National Human Rights Commission, Central Vigilance Commission, or National Commission for Minorities. The answer for that is National Commission for Women. Guys, एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा before I proceed further with the session is, whenever you see a question, I would just require all of you to take a notebook with you. आप एक नोटबुक या पेज अपने पास रखिए. In all the questions, attempt all the questions, mark down your answers and see whether your answers were right or wrong, because objective here is not just कि हमने क्वेश्चन आंसर करना. ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हो या अगर आपने नहीं भी पढ़ा और अगर आप एग्जाम में बैठे होते और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता तो आप क्या आंसर लगाते, ये भी हमें यहाँ पे सीखना है. ठीक है, और इसी से रिलेटेड हम ये चीज भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको बैक लिंकेज भी कर सकते हैं. जैसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विजय किशोर रतकर जी ने अपॉइंट हुए तो उनको इन्होंने किनको रिप्लेस किया? शी हैज रिप्लेस्ड Rekha Sharma ji, who was the earlier as the chairman of the National Commission for Women. Now the question can be, she has been appointed for how many years? So she has been appointed for 3 years or until 65 years of age. So ये इनकी अपॉइंटमेंट generally it's a tenure for the National Commission of Women, that 3 years or 65 years of age, whichever is earlier, the appointment is still that thing. Along with her, Archana Majumdar ji, she has also been appointed as a member of the commission here. Now if I talk about her, she has already served as the chairperson of the Maharashtra State Commission for Women, that is from 2016 to 2021. An important thing is, guys, the initiatives she has launched as the chairperson of Maharashtra State Commission for Women. So she has launched basically 3 initiatives. They are Sakshama. Sakshama is for acid survivors, ठीक है. देन इज फॉर द प्रज्वला, ठीक है. तो प्रज्वला का है, दैट इज फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विच आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड देन वी हैव सुहिता. सुहिता इज द 24/7 हेल्पलाइन सर्विस फॉर द वुमेन हियर. सो दीज 3 इनिशिएटिव्स अगेन यू शुड रिमेंबर बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो साक्षम किया, प्रज्वल किया और क्या किया? सुहिता. दैट इज द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स यू नीड टू रिमेंबर हियर. सो अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा तो आपको चीज और पता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के हेड भी अपॉइंट हुए हैं. It is not directly, but it's indirectly. I told you that a secretary has been appointed, but he will also be acting as the head for the government e-marketplace also. Okay, so you have to tell me what is the name of that specific person also, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन भी वो सेशन में, आई एम एक्सपेक्टिंग आपने वो सेशन भी देखा हुआ है. चलिए जी, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. नाउ फ्रॉम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दैट इज द Census Commissioner of India. So he is also be known as Registrar General as well as the Census Commissioner of India. His name was Mrityunjay Kumar Narayan, ठीक है जी, and his tenure has been extended. So we all know last census अब आया था इंडिया का 2011 में, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट सेंसस वाज एक्सपेक्टेड इन 2021, बट बिकॉज उस टाइम पे कोविड ईयर आ गया था, सो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंसस गॉट डिलेड एंड दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया. हैव यू टेल मी कब तक एक्सटेंड किया गया था? इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल द ईयर 2026. टू बी प्रिसाइज, इट इज अगस्त 2026 till which his tenure has been extended by the government of India. So guys, let's talk about census here. You have to tell me census last हुआ था 2011 में, पहला कब हुआ था? First census. Anyone? I want all of you to tell me the answer of census. First census कब हुआ था इंडिया में? ठीक है, so first time in India the census has conducted in 1872. ठीक है, उसके बाद 1881 onwards आपके डिकेडल सेंसस हुए थे.
ठीक है, दैट इज आफ्टर द 1881 ऑनवर्ड्स यू हैव स्टार्टेड विद द डिकेडल सेंसस, मतलब हर 10-10 साल बाद आपके सेंसस हो रहे थे। बट आफ्टर 2011 द सेंसस जो डिकेडल है वो ब्रेकआउट हुआ, बिकॉज 2021 में एक्सपेक्टेड था बट इट गॉट डिलेड ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, चलिए let's talk about next important here. So cyclone Dana is expected to make the landfall near Puri. So guys, when you will be watching this video, हो सकता है कि cyclone Dana has reached its or has made landfall in the eastern part of the country here. Then आपको मुझे बताना है this name is given by which country, and along with that the second point is the next cyclone after Dana it would be named as, उसका नाम क्या होगा? The answer for that is because cyclone Dana is named by Qatar and the next Senegal named is Fengal. ठीक है, so answer is option number C. Fengal is the name given by Saudi Arabia. तो जो दना है ये भी अरेबिक वर्ड से निकल के आया है, बट ये कतर ने नेम दिया था। एंड इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट नेम इट विल बी फनगल और फनगल विच विल बी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर इज गाइस दैट अब देखिए नेमिंग क्या होती है यहाँ पे ना, कुछ 16 कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने कुछ कुछ नंबर ऑफ नेम्स दिए हुए हैं और उस नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से साइक्लोन्स के नेम चलते हैं। ठीक है, अब इंडिया का लास्ट नेम दिया गया था तेज, सो तेज साइक्लोन विच वाज देयर, इट वाज अ नेम गिवन बाय इंडिया। नाउ इट्स नॉट दैट कि फेनगल के बाद अगला इंडिया का नेम है, जो इंडिया ने नेम दिए हैं तेज के बाद अगला नेम इंडिया ने कौन सा दिया हुआ है, मुरासू। सो इफ द साइक्लोन इज नेम्ड एज मुरासू दैट इज अ नेम गिवन बाय इंडिया। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस पार्ट। डैना इज अ नेम गिवन बाय कतर। ठीक है, देन आफ्टर डैना इट विल बी फेनगल विच विल बी द नेम गिवन बाय सऊदी अरेबिया। अब इंडिया ने भी अपनी लिस्ट दी है जिसमें से लास्ट तेज नाम तो था वो इंडिया ने दिया होता, अब अगला नाम जो इंडिया ने प्रपोज किया अगर इंडियन नेमिंग कन्वेंशन में आता उसका नाम है मुरासू। Okay, so this is about this thing news here. Chale, let's proceed to the next thing here. Which of the following books and authors are correctly matched which were announced in the month of October? So books play a very important role. हमने पिछली बार भी बुक डिस्कस की थी, कौन सी डिस्कस की थी? बुक वॉर। You discuss a book by the name of War. ठीक है, किसने रिलीज की थी? That is by Bob Woodward that I've discussed with you in the previous session of mine. Okay, so now you have to tell me which authors are correctly matched here. The books are, that is Ruminations 101 and More Short Essays on the Spirit of Indian Art by Dhirendra Jha. Golwalkar, The Myth Behind the Man Behind the Machine by B.N. Goswami. Then is Society Girl, A Tale of Sex, Lies and Scandals, that is by Saba Imtiaz and Toba Masood Khan. Then is When a Forest Walks, it is by Neha P. Lal here. So what should be the answer here? They is asking correctly matched कौन सी है, तो correctly matched है जी option number C, 3 and 4, because in 1 and 2 ठीक है, in 1 and 2 what is the thing is it is vice versa written. Actually the Golwalkar book is written by Dhirendra Jha sir and the Rumination is written by B.N. Goswami here. So answer is option number C, 3 and 4 is the right answer here. If you see the books which are being released this week are by the name of Ruminations 101 and More Short Essays on the Spirit of Indian Art, that is by B.N. Goswami sir. Golwalkar, The Myth Behind the Man Behind the Machine is written by Dhirendra Jha. Society Girl, A Tale of Sex, Lies and Scandals is given by Saba Imtiaz and Tuba Masood Khan. Then is When a Forest Walks, Neha P. Lal. Into the Storm by Cecilia Ahern. The Number You Are Calling is Switched Off by Tushar Srivastav. So these are the important books which were seen in news this week. So you should have an idea of this books also. ठीक है, पिछली बार मैंने कौन सी पढ़ाई थी? वॉर, जो पिछली क्लास की सबसे पहला क्वेश्चन था। वॉर बुक किसने लिखी है? बॉब वुडवर्ड ने लिखी है, विच इज टॉकिंग अबाउट द यूक्रेन वॉर, द मिडल ईस्ट वॉर एज वेल एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हियर. Let's talk about the next question. Anshuman Jhingra. So Anshuman Jhingra, a 19-year-old swimmer from Navi Mumbai. तो क्वेश्चन देखो, पहला पॉइंट क्वेश्चन से पॉइंट याद करना है, ये वाला पार्ट नवी Mumbai is a point to be remembered. Reason being that because if you look at the questions being asked in the clerical level or banking level paper, तो कई बार क्या होता है वो आपको बोलते हैं कि अच्छा जी उन्होंने अचीव किया था, ये कहाँ से है, इंडिया में कहाँ से? So he is from Navi Mumbai. What he has done is he has become the fastest Asian to cross the 42-kilometer long channel which is in Hawaii. Before this achievement, Jhingra has successfully crossed several international water routes except for the Dash Channel. अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. This is something which we always see as a direct question being asked in the examination. But if you look at the recent trends of the examination, what they are doing is कहीं ना कहीं वो आपसे indirect questions भी पूछते हैं. अब ये indirect question पूछा गया है, आपको पता होगा कहाँ पे किया है, किस किस में किया है. अब अगर सारे याद है तो इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो फिर यहाँ पे आप this is a question which really becomes hard at the time of the examination. So let's look at the options here. That is Kaiwi in English, Palk,
in Palk and Cook, Kaiwi and North channel, or Catalina and Park channel, or Molokai and Cook channel. So answer is option number A, Kaiwi and English channel. So if I talk about the thing here, guys, Anshuman Chingran, so he is a swimmer from Navi Mumbai. ठीक है, fastest Asian to cross the Kaiwi channel, which is in Hawaii in USA. Before that, he has crossed the 4 international open water routes or open channels here by the name of North Channel, the Catalina Channel, the Cook Strait, and the Park Strait is the answer here. Now we are talking about some important things. So we've discussed in the previous lecture about which person? That is about Mr. Nima Rajni Sherpa. ठीक है, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था. व्हाट इज अबाउट दैट? बिकॉज ही हैज अगेन क्रिएटेड द रिकॉर्ड हियर. रिकॉर्ड इज ही हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑल द पीक्स अबव 8,000 फुट. ठीक है जी. तो जो हमारी 8,000 मीटर अबव पीक्स हैं जितनी भी, वो सारी की सारी इन्होंने अचीव की थी. दैट इज बाय नीमा रिजी शेरपा. दैट वी डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन. सो अगेन आई से बिकॉज नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप बिल्कुल न्यू है तो मैं बोलूँगा अब आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंटरलिंकेज करना स्टार्ट करना है, बिकॉज देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हियर. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन है द करतारपुर कॉरिडोर. तो करतारपुर कॉरिडोर के लिए क्या हुआ? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज our foreign minister Mr. S. Jaishankar was on his visit to Pakistan for the SCO summit, Shanghai Cooperation Organization summit, and SCO also have discussed in the previous lectures of our general awareness. तो वहाँ पे क्या हुआ है? The renewal has been done for the Kartarpur corridor for 5 years. So first of all you should know, अब मुझे बताओ कितने साल के लिए? 5 साल कब तक? ठीक है. Then the question that I am asking you is on the background of this thing, that original agreement was signed for how many years, and it belongs to Sikh Guru. Which Sikh Guru of the 6th year? Okay, so you look at the options. It is 24th of October 2019, and it is belonging to Guru Nanak Dev Ji. Then it is 24th of October 2018, belonging to Guru Gobind Singh Ji. 21st of November 2020, belonging again to Guru Nanak Dev Ji. 24th of October 2020, Guru Arjan Dev Ji. Or 20th September 2019 to Guru Tegh Bahadur Ji. If you have a basic idea of Kartarpur corridor, Kartarpur Sahib जिसको बोलते हैं, so Kartarpur Sahib is related to Guru Nanak Dev Ji. So which means here our elimination, with an elimination we can say okay, these 3 statements are not valid. Now comes the next important thing. This is where again the thing got cumbersome for us. Why? Because if there are questions of this sort, so there is a possibility. अब यहाँ पे guess work चलेगा. अगर तो आपको पता है अच्छी बात है, नहीं तो क्या होता है? Calculative guess you can go on. कितने साल था, कैसा था, ठीक है. So initially this agreement was signed for 5 years. So that is in the year 2019. ठीक है. So from 24th of October 2019, the agreement was originally signed for 5 years. Okay, because but now as the deadline was coming closer, the government has again extended this thing for the next 5 years, that is till the year 2029. ठीक है. So 2029 तक this agreement has been extended. Originally it was signed on 24th of October 2019, talking about Kartarpur corridor. So it facilitates the pilgrims of India. Remember here, the Indian pilgrims can go to the Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur, that is in the place name is Narowal in Pakistan. So you can go with this thing also, which place in Pakistan this Gurdwara Sahib is situated, because somehow if you look at the papers, if the examiner really wants to confuse you, this is what he can do. He will simply ask you पाकिस्तान में कहाँ पे? पाकिस्तान की जगह का नाम है जी नारोवाल, दैट्स इन पाकिस्तान. और किन गुरु साहिब से रिलेट करे? दैट इज गुरु नानक देव जी, बिकॉज ही स्पेंट हिज लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ ड्यूरिंग द एट द करतारपुर जी. चलो नेक्स्ट इज IIT Madras is said that it has set to launch its first international flagship center for the research and innovation in which of the following places and in early dash, which means कौन से ईयर में and at which place. ठीक है. So I just give you an option, Singapore 2024 or New York 2024. So what should be the answer here? So answer is, guys, it is in Dubai. ठीक है. So it is going to set up its international flagship center for research and innovation, that is in Dubai. ठीक है. And by the year 2025. So what is the news is that Indian Institute of Technology Madras said that it would be setting up its first international flagship center, that is in Dubai. Now remember here, many international organizations or many Indian institutes are setting up their foreign institutes also. ठीक है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद करना आपको
कि किस पर्सपेक्टिव के लिए हो रहा है. इट इज बेसिकली फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप that is going to be set up by 2025 here. So here the specializations will be giving in the technologies like AI, data science, robotics, sustainable energy, and creating a new bridge to India's entrepreneurial ecosystem will be the thing here. Let's talk about next question here. So recently the Union Minister of Labour and Employment and Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, has launched e-Shram portal, which is a one-stop solution under the e-Shram portal. There ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च, इसका नाम है ई-श्रम वन स्टॉप पोर्टल, ई-श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पोर्टल. नाउ माय क्वेश्चन इज फ्रॉम द ई-श्रम पोर्टल हियर. अंडर द ई-श्रम पोर्टल एनी ऑर्गेनाइज्ड वर्कर इन द एज ग्रुप ऑफ डैश कैन रजिस्टर हियर. ई-श्रम पोर्टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ रिमेंबर श्रम कम्स फ्रॉम अ वर्ड श्रमिक. ठीक है, चलिए. So what is the thing? Answer here is that is 16 to 59 years. Guys, these are the questions which have already been asked in the RBI or regulatory bodies. RBI NABARD examination में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. So answer is option number C, 16 to 59 years. If I talk about e-Shram portal, it's a very very important portal because if I talk about this specific portal, it is considered as the national portal. ठीक है, national database of unorganized workers in India. तो काइंड ऑफ नेशनल डाटाबेस बनाना चाहते हो ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन इंडिया, that is for the shramik people, so that we could help them get the benefit of the government schemes. Okay, so the e-Shram one stop solution has been unveiled by the Minister of Labor and Employment. That's a point to remember because e-Shram is under Ministry of Labor. It's a very very important thing because lot of times students got confused between e-Shram, that it's under Ministry of Labor or Ministry of Social Justice. It is under Ministry of Labor because I told you a very basic thing. जहाँ पे आपको श्रम दिख जाए, remember name is as Shram is Shramik and Shramiks are laborers. तो वहीं से याद रखना बिकॉज हमने एक स्कीम पढ़ी थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की स्कीम है. ठीक है, डिस्कस दैट ऑल्सो. जब हम अटल पेंशन योजना डिस्कस कर रहे थे, एपीवाई हमने डिस्कस की थी, तो एपीवाई डिस्कस की, श्रम योगी मानधन डिस्कस में मतलब श्रम योगी मानधन भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है. ये चीज़ सबसे पहले याद रखना है. अब ई-श्रम क्या है? ये बेसिकली एक वन स्टॉप सोल्यूशन क्या करेगा, ये सीमलेस एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स विच इज द फीचर ऑफ ई-श्रम पोर्टल टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हियर. दैट इज बेसिकली फ्रॉम द सीमलेस एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन्स हियर. Okay, it will simplify the registration process as well as facilitation of access to government welfare schemes here. Talking about e-Shram portal, so e-Shram portal was launched in the year 2021 by the Ministry of Labor and Employment. As I told you, it is considered as the national database of the unorganized worker, or the first ever time we are creating this sort of, first ever time in the world where this sort of national database of unorganized worker has been set up, which will include the workers like migrant workers, construction workers, gig workers, as well as the platform workers will be included here. So social security scheme benefits जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे कैसे, क्योंकि कैसे हेल्प कर रहे हो, by providing them the benefit of social security schemes and to enable a self registration for आधार सीडी डिटेल्स. जैसे आपका आधार नंबर है वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जाता है यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इज गिवन, दैट इज अ 12 डिजिट universal account number is given. Based on this number it would be given to the workers after registration, which allows them to have a social security portability with the job changes. आपका सिंगल एक नेम बन गया, नंबर बन गया. जैसे कि इंडिया में मैंने आपको बताया था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, वहाँ पे भी फार्मर आईडी बनेगी. यहाँ पे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है. आधार के केस में आपकी आइडेंटिटी के लिए आधार आईडी बन रहा है. For your income tax, you have a unique ID of PAN number, permanent account number. Why government wants to give you this unique IDs? The government, the purpose is guys that आपके पास सिंगल ID है, आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी पोर्ट कीजिए, आप अपनी आईडी डालिए और आपके जो भी बेनिफिट्स हैं दैट कुड बी एडेड टू योर थिंग, या वो आपको सारे क्लैरिटी मिल जाए. अगर आपका पैन नंबर है, आपको इनकम टैक्स का कोई भी इशू हो जाए, सिंपली आस्क यू व्हाट इज योर पैन नंबर. ओके, फॉर योर आइडेंटिटी गवर्नमेंट सेज गिव अस योर आधार नंबर, वी कुड गेट योर आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स हियर, है ना. So that is the thing, that is the unique ID you need to remember, that is the universal account number, unique ID है. अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो मैंने आपको बोला था अनऑर्गेनाइज. सबसे पहले याद रखना यहाँ पे वर्कर शुड बी अनऑर्गेनाइज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी इन द एज ऑफ 16 to 59 ईयर्स. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं 18 ईयर्स नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये 16 से है, 16 to 59 ईयर्स. ओके, चलिए
Let's proceed with the next thing. So guys, which of the following statement is incorrectly मैच्ड विद द विनर्स ऑफ द फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2023? ठीक है, अब देखो ये भी बहुत काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज बिकॉज वी हैव सीन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस रिसेंटली इन सम एग्जामिनेशंस। और रीजन क्या है कि अब यहाँ पे टेस्टिंग क्या होती है, कई बार अगर आपके पेपर में कुछ 2 मार्क के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जनरली एसबीपीओ में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या टेस्ट करना चाहते हैं, वो आपका इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस करना चाहते हैं। अब आपने बहुत कैटेगरीज पढ़ी है, सिंपल क्वेश्चन सिंगल है, बस बेसिकली क्या है 5 क्वेश्चन मिला के सिंगल क्वेश्चन बना दिया। ओके, so which is incorrectly matched. Odisha is being ranked as the first in the best state category. Pulampura in Kerala is the first, or if I talk about the best village in Panchayat. Surat is the best urban local body. Banda in Uttar Pradesh is the best district in North Zone, and Uttarakhand is being named as the best district in the West Zone. अब ये क्वेश्चन अगर आप आराम से भी समझो तो आपको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, इसका आंसर है ओनली 5। ओनली 5 इज इनकरेक्ट। पहली बात तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्टेट है। ठीक है, कॉमन सेंसिकल वे से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, बट इट्स नॉट अमंग द वेस्ट जोन ऑल्सो। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है जी, तो अगर मैं इस रैंकिंग की बात करूं तो इस रैंकिंग को डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर रिजुविनेशन यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स दिस हैज लॉन्च दिस स्पेसिफिक रैंकिंग एंड दिस इज द नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023 here. Now these are the important winners that you must remember that are very very important. So in terms of state, it is Odisha, it is आउट पढ़ते तो पी याद रखना आउट। ठीक है, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एंड पुडुचेरी अमंग अदर अमंग द बिग स्टेट्स हियर। ओके, देन बेस्ट विलेजेस, ठीक है जी, पुलाव बने हैं गांव में, पुलाव इज पुलमपरा, पुलमपरा इन केरला। सो केरला इज यूज फॉर राइसेस, तो पुलमपुरा, पुलाव याद रखना, पुलाव। ठीक है, इन द बेस्ट विलेज पंचायत दैट्स इन तिरुवनंतपुरम इन केरला हियर। Then I think second, third just have an idea because it's a very less chance they will be asking question here. Best urban local body सूरत, ठीक है जी, तो अर्बन सूरत है, तो अर्बन सूरत सूरत फॉलोड बाय पुरी एंड पुणे हियर। देन इन टर्म्स ऑफ बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन साउथ जोन इट इज विशाखापट्टनम, इन नॉर्थ ईस्ट इट इज धलाई, इन नॉर्थ जोन इट इज बांदा, वेस्ट जोन में है इंदौर, ठीक है जी, और ईस्ट जोन में आता है बालांगीर। आप उत्तराखंड से वैसे भी समझ सकते हो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाले पॉइंट से भी नहीं समझे तो आप ये सोचो उत्तराखंड वैसे भी नॉर्थ ऑफ इंडिया में आता है, ना कि वेस्ट ऑफ इंडिया में आता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आप वहाँ से आंसर निकाल सकते हो। समटाइम्स दिस क्वेश्चंस लुक रियली डिफिकल्ट बट असल में बहुत आसान होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको समझनी है कि क्वेश्चंस कई बार देखने में बहुत मुश्किल लगेंगे आपको एग्जाम में कि सर इतना कौन याद है, कैसे याद होंगे हमें। आप टॉप याद कीजिए ना, आप जो सारी कैटेगरी के टॉप प्लेस याद कर लीजिए, और यहाँ पे तो अगर हम कॉमन सेंसिकल वे से भी निकालें देन ऑल्सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बिकॉज जनरली मेजोरिटी ऑफ टाइम क्या होता है, हम क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं कि ये नहीं होने वाला, और अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश, थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल वर्ड निकाल दो, आंसर निकल जाता। ठीक है, उसने इनकरेक्टली पूछा तो आपको फिफ्थ तो ऑप्शन देख ही रहना इनकरेक्टली, और यहाँ पे कोई और ऑप्शन ही नहीं है फिफ्थ के अलावा, सिर्फ एक ही है। तो दिस क्वेश्चन आई इंटेंशनली मेड कि आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, बट जब आप सॉल्व करोगे तो लगेगा बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको लग रहा है वाकई सर ये चीज़ ऐसे है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ सर था सही चीज़। चलिए जी, अब आते हैं पुलिस कमेमोरेशन डे। सो कुछ डेज आते हैं गाइस जो इंपॉर्टेंट है। सो पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? सो पुलिस कमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd ऑफ अक्टूबर हियर। अच्छा, 24th ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन सेटअप इन द ईयर 1945। Now can you tell me about United Nations? Yeah, United Nations के कितने members हैं? It has 193 members in total. Last one was South Sudan that was set up in the year 2011. ठीक है, आई थिंक 2011 में साउथ सुडान आपका लास्ट मेंबर बना था। अब अगर साउथ सुडान के अलावा अगर आपसे और चीज़ें पूछूं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे के हिसाब से, ठीक है, तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल याद रख लेते हैं, फर्स्ट, because we know at this point of time Antonio Guterres is the Secretary General of United Nations। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का नाम है, ठीक है जी, that is, and he was from Norway। Then the question can be asked is who has given the term United Nation? तो ये term United Nation जो है किसने दी थी, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, बिकॉज अगर I can talk about because it's a very important day, United Nation Day. So who has governed this term? This term was given by the American president.
दैट इज मिस्टर फ्रैंकलिन रॉजवेल्ट। फ्रैंकलिन रॉजवेल्ट, इन्होंने ये टर्म दी थी, दैट इज बाय द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशंस हियर। ठीक है, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना था एंड इट इज ऑब्जर्विंग इट्स डे, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24th ऑफ अक्टूबर हियर, तो ये भी याद रख लीजिए। ठीक है जी, उसके अलावा काफ़ी डेज मैं आपके साथ पढ़ चुका हूँ। और डेज की मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट जो थे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, दैट इज अगेन सेलिब्रेटेड ऑन 24th ऑफ अक्टूबर। वर्ल्ड डेवलपमेंट information day, that's again being observed on 24th of October here. Then disarmament week, disarmament week, that is being celebrated from 24th of October to 30th of October। तो बेसिकली जो डिसआर्मामेंट है, आर्म्स को कम करना, उसके लिए ये जो है इट हैज़ बीन डिस्कस हियर। पिछली बार हमने कौन सा पढ़ा था, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन। तो डिसआर्मामेंट से एक चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस, डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन, कैन यू टेल मी विच डेट, दैट्स ऑन 13th of October, 13th of October। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंपॉर्टेंट डेज। ओके जी, 21st को है। ठीक है, चलिए let's look at the next question here, where was the India Oman bilateral naval exercise Naseem Al Bahar conducted? Important questions, generally these sort of easy questions are always being seen in the examination। तो कहाँ पे है नसीम अल बहार? नसीम अल बहार जो है, it has taken place in Goa this year। ठीक है, so it has taken place in Goa this year, it's a kind of a naval exercise taken between India and Oman here। तो question to be remembered is India Oman and the name of the exercise, that is Naseem Al Bahar here। चलिए next question है, the first anniversary of the operation of Namo Bharat trains। So Namo Bharat trains has been celebrated। तो आपको मुझे बताना है, the first anniversary of the operation of Namo Bharat train was celebrated as Namo Bharat Divas। These trains are part of India's first regional rapid transit system। तो question is actually asked, Namo Bharat trains किसका नाम था? Namo Bharat train was actually name given to the RRT, Regional Rapid Transit System trains। So you have to tell me this train has actually ran between। तो ये इनिशियली ट्रेन कहाँ पे रन हुई थी, बिकॉज पहली लॉन्च हुई थी तो कहाँ पे रन हुई थी, इट वॉज फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ और गाजियाबाद टू दुहई, दैट इज फ्रॉम शाहीबाद टू दुहई और आनंद विहार टू शाहीबाद और गाजियाबाद टू मेरठ। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर, इट इज फ्रॉम शाहीबाद। ठीक है, दैट इज शाहीबाबाद टू दुहई। सो एग्जैक्ट नेम इज शाहीबाबाद, तो शाहीबाबाद से चली थी। ठीक है जी, बिटवीन शाहीबाबाद एंड दुहई दिस फर्स्ट RRTS सिस्टम वाज स्टार्टेड। ठीक है जी, और करंटली जो नमो भारत सर्विसेज हैं वो 9 स्टेशन पे, दैट इज अराउंड 42 किलोमीटर इट इज रनिंग हियर। ठीक है, दैट इज द नमो भारत ट्रेन हियर। ठीक है, तो ये विद इन सिटीज जो हैं, बेसिकली सिटीज को रन करती है, दैट इज अ काइंड ऑफ इंटर सिटी ट्रेन वी आर गोइंग टू सेट अप हियर बाय द नेम ऑफ RRTS हियर, नमो भारत ट्रेन हियर। ठीक है, देन लॉन्ग रन के लिए हमारे पास कौन सी हैं, वंदे भारत ट्रेन हैं। ठीक है जी, एंड देन फॉर द इंटर सिटी वी हैव अ metro cities here। okay, चलिए जी, and if I talk about this Namo Bharat Divas, that was actually celebrated on 21st of October। Next question is, recently the New Zealand has won their first ever ICC Women's T20 World Cup by defeating South Africa in the final। So my question to you is that which country has won the ICC Women's T20 Cup or Women's T20 Championship maximum number of times? Important question है। अब देखो, फिर उन्होंने recent context से background से question पूछे। Okay, first of all, this thing is important for us, which country has won for the first time here? The answer is, किसने जीता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। अगर आप ऑप्शंस में देखो तो कंफ्यूजन जनरली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज इन वुमेन्स क्रिकेट दे आर द डोमिनेटिंग पिलर्स हियर। ओके, एंड द आंसर इज गाइस ऑप्शन नंबर, इट्स ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलियन वुमेन हैज वन this cup for maximum number of times। If I talk about India, so India has not won the T20 World Cup। India has not won the T20 World Cup in women's। Obviously, men's T20 World Cup we have won 2 times because we are the champion of the men's T20 World Cup this year. That's in the 2024. But and we were the winners of 2007 inaugural T20 Championship। But in terms of women's championship, हमने कभी नहीं जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? This has taken place in UAE। It was originally proposed in Bangladesh, but we know Bangladesh में civil war हो गई थी। The former president of Bangladesh, Sheikh Hasina, she has to withdraw, she has to fled away from the country here। उनके बाद मोहम्मद यूनिस जो है वो उनके
इंटरिम प्रेसिडेंट बने, फिर उनकी अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशंस हो रही हैं, ठीक है। और इसी केस के चक्कर में बांग्लादेश से इसको निकाल के कहाँ पे भेज दिया गया, यूएई पे भेज दिया गया, ठीक है जी। और जीता कौन, न्यूजीलैंड जीता फॉर द थिंग हियर। अच्छा T20 से एक चीज़ और याद रखो, अभी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, दैट इज द हाईएस्ट स्कोर इन T20. So highest score in T20, earlier the record was with Nepal, but now it is with Zimbabwe. ठीक है, so Zimbabwe has scored the highest T20 international score. That's the team against is Ghana, and that is around 344. 344 रन बना दिए उन्होंने. India is already post. India has also post the record here. That is India scored around 295 against Bangladesh. If they talk about the top playing nations, बी क्लास को हटा दो, सिर्फ टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस या फिर टेस्ट प्लेइंग नेशंस या टॉप T20 प्लेइंग नेशंस, उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंडिया का रिकॉर्ड है. अगर जनरल कंटेक्स्ट में पूछा जाता है तो जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड आ जाता है विद द हाईएस्ट स्कोर इन द T20 इंटरनेशनल, बिकॉज दैट्स अगेन अ रीसेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट हियर. फिर क्रिकेट में रिसेंटली हमने क्या पढ़ा था, टॉक्ड अबाउट ईरानी कप. ईरानी कप किसने जीता था, ईरानी कप रिसेंटली मुंबई ने जीता था बाय डिफीटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया हियर. The important point here is Mumbai became the Ranji Trophy. That is, it became the successful Ranji Trophy to win the Irani Cup maximum number of times. Overall, I told you, if I overall talk about बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बार ईरानी कप किसने जीता था, वो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है. बट रणजी टीम के केसेस में मुंबई ने ये रिकॉर्ड बनाया था क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ है, ठीक है. टॉकिंग टू दिस टीम, दिस वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इट हैज़ टेकन प्लेस इन UAE. Okay, if I talk about here, defeated South Africa, player of the tournament, or if I talk about the player of the final is Amelia Kerr. Okay, and she's also the player of the tournament also. Talking about the thing here, most capped player in women's international cricket, so it was earlier Mithali. That is something you need to remember here. Okay, so the former Indian captain, women's team captain Mithali Raj, so she has been surpassed by Susie Bates. Susie Bates, she has become the most capped player in women's international cricket here. Important point मैंने आपको बता दें, यूएई है, विनर न्यूजीलैंड है, कैप्टन कौन थी, सोफी डिवाइंस हैं, ठीक है जी, और रनर अप की कैप्टन कौन थी, लॉरा वॉल्वेट थी. इट्स द 9th एडिशन एंड ऑस्ट्रेलिया हैज वन दिस टाइटल मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 6 टाइम्स. बाकी सबने कितनी बार जीता, एक बार जीता है. न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज and England have won this for the one time, but Indian team has never won this women's T20 World Cup title here. Let's look at the next question here. So guys, I told you in the previous class that we'll be discussing Nobel Prize in the next classes here. Nobel Prize are given in different categories. So these 3 questions which I'm going to ask you will be on Nobel Prize, and then at the end I will be discussing about their things. Nobel Prize in Physics has been awarded to whom? That is for their work in enable machine learning with artificial neural networks. So it is being given to, that is, Jeffrey Hilton and John J. Hopfield. Next question is on the Nobel Prize in Chemistry that has been awarded to Demis Hassabis and John M. Jumper. So they have been given this award for which specific criteria, for which specific area they have been given this award for the protein structure prediction. देखो पिछली बार माइक्रो RNA के ऊपर दिया गया था, but this time it is for protein structure prediction. This award has been given in Nobel Prize in Chemistry here. Then is the 2024 Nobel Peace Prize was awarded to Nihoko Hideankyo. ठीक है, Nihon Hideankyo for its effort to achieve which of the following, मतलब उनको किस चीज के लिए मिला था, ठीक है. इंटेंस पोएटिक प्रोज, दैट इज कन्फ्रंटिंग हिस्टोरिकल ट्रॉमास, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA, एडवांसिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, स्टडीज ऑन हाउ इंस्टीट्यूशन अफेक्ट्स प्रॉस्पेरिटी, और अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, a world free of nuclear weapon. For that purpose he has been given this specific Peace Prize award here. Coming to the question guys, if we talk about Nobel Peace Prizes or Nobel Prizes here, Alfred Nobel के नाम पे ये Nobel Prize start हुए थे. The question is on the category. So Nobel Prize for Physics is given to John J. Hopfield and Jeffrey Hinton. Okay, so both of them have received this award for enabling machine learning with artificial, that is for the foundational discoveries and invention of enabling machine learning with artificial neural networks here. Chemistry के लिए डेविड बेकर जी को मिला है for the protein designing, that is computational protein designing. केमिस्ट्री के लिए डेमिस हैसेबिस, तो डेविड बेकर जी को भी मिला है, एंड इट इज ऑल्सो बीन गिवन टू दी डेमिस हैसेबिस एंड जॉन एम जंपर. जॉन एम जंपर दे हैव गिवन फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन. computational production protein design is David Baker, but for the structure prediction it is Demis Hassabis and John M. Jumper. तो देखो जंप करके आपने स्ट्रक्चर बना दिया, जंप ने क्या किया, स्ट्रक्चर बना दिया केमिस्ट्री का,
ठीक है जी। और डेविड ने क्या किया, डेविड ने उसको डिजाइन किया, डेविड डिजाइन जंप structure of jump on chemistry and make a structure here. Then if I talk about here, hope किसको दी गई, hope is being given to physics for enabling machine learning by Hinton here. Hope is given for physics in enabling the machine learning for the by the Hinton here. Then is medicine. Medicine was given to Victor Ambros and Gary Rukun. So they have been given the award for the discovery of microRNA. ठीक है, discovery of microRNA, this award is being given in terms of medicines. ठीक है, and the role in post transcriptional gene regulation. So microRNA के लिए इसको मिला गया है Victor Ambros and Gary Rukun here. Literature is Han Kang. So Han Kang has been given for literature for her intense poetic purpose here. तो याद रखिए Han ने क्या किया, लिटरेचर किया, क्या हैंग कर दिया, ठीक है, पोइटिक जो वर्सेस हैं उसको हैंग कर दिया गया लिटरेचर में. दैट इज द थिंग हाउ यू कुड रिमेंबर हियर. पीस इज निहान हियानक्यो. ठीक है, निहान हिदानक्यो हैज रिसीव्ड दिस पीस अवार्ड फॉर his effort to achieve a world free of nuclear weapons and for demonstrations through the witness testimony that nuclear weapons must never be used again here. Then if I talk about in terms of economics, that is known as Nobel Prize of Economics, and that is also known as Sveriges Riksbank Prize in Economics, Science in Memory of Alfred Nobel 2024. This award has been given to Darren Akamlock, Simon Johnson and James A. Robinson here. ठीक है, तो रॉबिन, जॉन और गोलू ने क्या किया, उनको इकोनॉमिक साइंस का अवार्ड मिला. तो ये ओगुलू को आप गोलू याद करो. ठीक है जी, रॉब, जॉन और गोलू को क्या मिला है, इकोनॉमिक अवार्ड मिला है. किसके लिए, उनको प्रोस्पेरिटी लाने के लिए. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल प्रोस्पेरिटी लाने के लिए. दिस इज हाउ यू कुड रिमेंबर द थिंग्स हियर. चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. सो द हरियाणा गवर्नमेंट हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. हमने पिछली बार पढ़ा था ऑन द इलेक्शंस दैट Omar Abdullah, ठीक है, he has become the first chief minister of Jammu and Kashmir after the abrogation of Article 370. अब हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि हरियाणा के भी चीफ मिनिस्टर बने थे बिकॉज इलेक्शन हैज टेकन प्लेस देयर आल्सो, दैट इज मिस्टर नायब सैनी. ही हैज बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. अब हुआ क्या है कि हरियाणा में it has become the first state to implement it. There was a ruling of Supreme Court that is on sub classification of scheduled caste also in terms of job reservation. ठीक है, and this division has been done by Haryana in two groups, that is known as the deprived group and that is known as other scheduled caste group. So question is asking is which of the following is not a part of this deprived scheduled caste group. वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. और अगर इस तरह के क्वेश्चन देखिए पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे, तो ये वन ऑफ दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, वाल्मीकि, धनकास, चमास, मजबी 6 और खातिक here. So the answer is option number C. ठीक है, so option number C is the answer here. If I talk about this, it became the first state in India to implement this Supreme Court's ruling on sub classification here. तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने, they have set aside 50% of the 20% scheduled caste quota from the candidates of deprived scheduled caste. So that is again something you need to remember. 50%. If it is 20%, 50 means 10% हो गया, 10%, 10%. Then this deprived scheduled caste is comprising of these 36 groups, which includes the groups like these names are given here: Valmiki, Zanaks, Mazbi 6, and Khatiks here. And the other scheduled caste categories comprising of the areas of the categories like Chamas, Raigars, Raigars, Ramdasis, Ravidasis, or Jatas. So they are the things here. The question that can be asked is on a vice versa also: which state became the first state in India to implement the ruling on the sub classification of the scheduled caste for job reservation? That is Haryana. ठीक है, कितने ग्रुप्स में होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो दो ग्रुप्स हैं जी, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट एंड अदर शेड्यूल कास्ट, एंड देन इज नॉट अ पार्ट. सो दैट इज द थिंग दैट आई हैव आस्क्ड यू इन द क्वेश्चन हियर. ठीक है, तो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ के जाना, ये चीज समझो, बिकॉज इफ यू लुक एट द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ द पेपर, तो अब ऊपर ऊपर वाला जमाना चला गया यार, क्वेश्चन इन डेप्थ भी पूछे जा रहे हैं, तो वहां के लिए भी हमें ट्रेंड होकर जाना है. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड इन खंडवा. ठीक है, सो नेशनल किशोर कुमार अवार्ड इन खंडवा इन मध्य प्रदेश ऑन द 37th डेथ एनिवर्सरी ऑफ किशोर कुमार हियर. सो ऑप्शंस आर संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, अनुराग कश्यप, विधु विनोद चोपड़ा और करण जौहर. सो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार हिरानी. सो राजकुमार हिरानी, दैट इज द फेमस फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, उनको ये अवार्ड मिला है. ठीक है, एंड दिस अवार्ड इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम देयर 1997 ऑनवर्ड्स टू मार्क द एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ किशोर कुमार हियर. ओके जी, चलिए
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नारायण मूर्ति. सो रिसेंटली मिस्टर नारायण मूर्ति, देखो अभी राजकुमार ईरानी जी को मैंने बोला किशोर कुमार अवार्ड इन खांडवा मिले, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिस्टर नारायण मूर्ति बिकॉज ही इज ऑल्सो बीन ऑनर्ड विद एन अवार्ड बाय द नेम ऑफ पैट्रिक जे मैकग्रोवन. So Patrick J. McGovern Award by the Chariot Ventures. So Chariot Ventures they used to present this award here. और किस ईयर में, क्वेश्चन क्या है, किस ईयर में ये अवार्ड दिया गया था, किस ईयर में ये अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ था. अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो देखो दिस इज अ रीसेंट कंटेक्स्ट. अब क्वेश्चन कंटेक्स्ट से फिर बैकग्राउंड पे चला गया और ये एक ट्रेंड हमने रीसेंट ऑब्जर्व किया. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन दिस सेशंस आल्सो. Okay, so in which year was the Chariot Venture Patrick J. McGovern Award was established? It was established in the year 2016. Talking about this award, so this award has been given to Mr. Narayan Murthy. Basically, there are different categories given here. If I talk about Mr. Narayan Murthy, he has been awarded in terms of India Lifetime Achievement Award is being given to Mr. Narayan Murthy. Okay, then the Shantanu Narayanan, Mr. Shantanu Narayanan, who is the CEO at Adobe. Okay, he has won the Global Lifetime Achievement Award. And then we have Abhinav Asthana. Okay, Abhinav Asthana has been received the Exceptional Entrepreneurial Achievement Award. That's the thing you need to remember here if somehow they goes really in depth. तो पहले तो यही है कौन सा अवार्ड मिला है, मैकगवर्न अवार्ड मिला है. मैकगवर्न अवार्ड भी जो है उसके भी आगे 3 कैटेगरीज हैं. इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देन वी हैव ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड देन वी हैव एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योर लाइफ अचीवमेंट. इंडियन इज नारायण मूर्ति, ग्लोबल कौन है, शांतनु जी. तो शांतनु जी कौन है, एडोबी. तो शांतनु एडोब हो चुके हैं, दैट इज ग्लोबल. And then is the third person is that is Abhinav Asthana, that is the Exceptional Entrepreneurial Achievement Award is given to him. The awards were achieved in the established in the 2016. Now here we're talking about Infosys because Mr. Narayan Murthy is the founder of Infosys. Infosys again has something in common. Infosys was the first company to get listed on Nasdaq platform. Nasdaq USA, जैसे इंडिया में NSE BSE वैसे यूएसए में Nasdaq आता है. तो पहली कंपनी इंडिया की कौन बनी थी, Infosys बनी थी. अब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इन्फोसिस कौन सी ईयर में बनी थी. सो आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो फॉर यू. दैट इज इन्फोसिस वाज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन नेस्डैक, देन दैट वाज इन द ईयर 1999. So please note down this important information also because that's again something that can be asked as a part of static GA also to us in the examination here. Let's look at the next question here, that is Steel Authority of India. So देखो important awards मैंने सारे इकट्ठे करवा दिए. Steel Authority of India has recently received SHRM, ठीक है, SHRM HR Excellence Award in which of the following categories has SAIL been awarded. तो किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है. Now all the questions of awards if you talk about here except the first question of किशोर कुमार अवार्ड सर, बाकी सारे क्वेश्चंस जो दोनों क्वेश्चंस हैं बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं. तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ बैंकिंग करंट अफेयर्स डू नॉट टेक इट लाइक दैट कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे. अब हमें थोड़ा सा इन डेप्थ, आई थिंक आई कैन से 1 लेयर ऑफ इन डेप्थ वी नीड टू रिमेंबर किस कैटेगरी में मिला है. So the answer is option number B. It is an excellence in inclusion, equity and diversity here. So Steel Authority of India has been awarded the SHRM, that is HR Excellence Award, and it has been awarded in the, that is Steel Authority of India को 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला. कौन सा Excellence in Inclusion, Equity and Diversity, and then we have Excellence in Managing the Distributed Workforce here. सेल से एक चीज़ आता है, सेल कौन सी है, सेल एक महारत्न कंपनी है, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था पिछले सेशन में. बिकॉज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड has recently been categorized as the महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है. और सेल भी उनमें से एक आते, गेल भी आते, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोथ आर दी महारत्न कंपनीज हियर. बट इंपॉर्टेंट फॉर अस वाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बिकॉज इट हैज रिसेंटली बीन categorized as the महारत्न कंपनी and that also I have discussed with in the previous session. तो अगेन अगर आपने डिटेल में पढ़ना है महारत्न के बारे में तो पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप वो भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम फॉर बेसिकली combating the cyber frauds has been launched. You have to tell me which entities have launched this specific initiative that has been launched by the Department of Telecommunication and Telecom Service Providers. Okay, so Department of Communication and the Telecom Service Providers have launched this specific initiative here. Talking about this international incoming spoofed call system, guys, ठीक है, as I told you, objective is simple. इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल. स्पूफ का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आइडेंटिटीज ब्लॉक की जाती हैं या फिर जहाँ पे आपको फेक कॉल्स की जाती हैं. सो फॉर देयर द सिस्टम विल आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक दिस इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल्स. ओके, देन इंपॉर्टेंट थिंग इज इट विल ऑल्सो बी वर्किंग, ठीक है, इट विल बी ऑल्सो वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सेफ डिजिटल स्पेस एंड प्रोटेक्टिंग द सिटीजन फ्रॉम द साइबर क्राइम इन इंडिया. ठीक है जी. इंडियन टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स जो हैं, अगर कोई भी,
ठीक है, शुड सी अस रिडक्शन इन सच पोस्ट कॉस्ट बिकॉज विद इन +9 मंथ तो आपको नंबर आएगा विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये क्या आपको इंडियन नंबर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि इशू क्या होता है, दिस कॉल्स अपीयर्स टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, बट ये एक्चुअली बाहर से की जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आजकल डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको कव आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट आता है भारत संचार निगम लिमिटेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियसली आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द न्यू स्टैच्यू फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन अनवील्ड, जहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड दैट द ब्लाइंड फोल्ड हैज नाउ बीन रिमूव्ड बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट इक्विटी, कि अब इक्वालिटी से इक्विटी से देखा जा रहा है सबको, ठीक है। नाउ ऑन दैट नोट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीएसएनएल, सो भारत संचार निगम लिमिटेड हैज आल्सो अनवील्ड अ न्यू लोगो हियर। You have to ask me, give me the answer on what is the element of the logo represents, because क्वेश्चन मास्टर कार्ड भी पूछा गया था, मास्टर कार्ड के लोगो पे भी पूछा गया था कि जो लोगो के कलर होते हैं शायद वो कौन से कलर के होते हैं, ये पूछा गया एचबीपीओ में, पुराने पेपरों में। तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन था, पिछली बार हमें लगा क्या था, बट अब क्योंकि ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएनएल, इसका तो लोगो ही नया अनवील हुआ है, तो आपको सारा कुछ अबाउट लोगो यू शुड हैव एन आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज दिस लोगो रिप्रेजेंट्स इज द थिंग हियर, strength, unity and progress, growth, inclusivity and leadership, strength, trust and accessibility, innovation, connectivity and expansion, or transparency, reliability and security. So answer is option number C, strength, trust and accessibility is the answer here. Look at the logo first. Logo is about, this is the new logo, ठीक है, depicting India in a orange color and white और green का एक सर्कल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार कुछ नहीं पता, वो आपसे कलर भी पूछ ले कौन से कलर यूज किए हैं। तो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट it, logo depicts these three ones, that is SAR, securely, affordability and reliability, connecting Bharat, securely, affordability and reliability, that's a part of the logo here. But if I talk about what this symbolizes, it symbolizes about these three terms, STA, strength, trust and accessibility. So this is a very important thing guys. If the question simply comes from the logo here, logo का नाम क्या है, connecting भारत, that is through securely, affordability and reliability, but अगर पूछा उसका symbolization क्या है, वो आ जाता है जी strength, trust और accessibility here, ठीक है। So the thing is the green and white arrows are there which surrounds the nationwide reach here, orange depicts the inclusivity of the country here, ठीक है। द बोल्ड टैगलाइन दैट इज कनेक्टिंग भारत, ये बेसिकली वही है, इसकी टैगलाइन है कनेक्टिंग भारत हियर, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ओके। चलिए, तो दिस वाज अबाउट अवर जीए वाला पार्ट क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स, बिकॉज इस साल दो प्रोमिनेंट स्कीम्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। सबसे पहले थी भारतीय जन औषधि परियोजना एंड द सेकंड वन वाज उड़ान स्कीम, okay, and then we have a report that we're going to discuss is world economic outlook here, okay। global hunger index एक रिपोर्ट है यार, वो मैं आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, okay, because the objective is to do not want to bombard you with the things, we want to कि आपको चीज़ें याद हो, जैसे इसीलिए मैंने नोबेल प्राइज इस हफ्ते करवाए थे कि ताकि आपको थोड़े से ईजी हो जाए। इस तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको नेक्स्ट वीक बढ़ा दूंगा। सो क्वेश्चन इज अबाउट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना हियर। So my question is, which of the following statements are correct regarding this thing here? And guys, you can expect some statement with questions here also. PMBJP has achieved a sale worth rupees 1000 crore rupees in October 2024, which indicates that there is a growing public trust in affordable medicines here. Question is simple कि आपको ये पता होना चाहिए 1000 करोड़ का एडिशन हुआ था या नहीं हुआ था। It aims to increase the number of Jan Aushadhi Kendras to 25,000 numbers within next 2 years. It was initially launched as Jan Aushadhi scheme in the year 2008, but it was later renamed as 2016. It was renamed as Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. Question is कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स गिवन हियर आर करेक्ट, बिकॉज द रीसेंट न्यूज वाज दैट अंडर द भारतीय जन औषधि परियोजना द माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड, दैट 1000 करोड़ सेल वर्थ हैज बीन अचीव्ड थ्रू द फॉर्म ऑफ सेल्स अंडर द भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है जी। उसके बाद ये बोला गया है दैट the growth of this 14,000 kendras have been there in the country, and we are targeting to set up 25,000 more Jan Aushadhi kendras in the country in the upcoming 2 years here. Now let's decode the scheme. As I always say, scheme को decode करने का सिंपल फंक्शन है। सबसे पहले आप स्कीम का नाम समझिए, क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि। जन औषधि का मतलब क्या होता है, जन का मतलब लोगों तक पहुंचाना, औषधि मीन्स दवाई, तो जन तक कौन सी पहुंचाओगे, हर दवाई तो नहीं पहुंचा पाओगे, तो जन तक सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी, जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक, जैसे आपने नाम सुना होगा पैरासीटामोल, लिवोसेट्रिजिन, दिस इज द नेम ऑफ द, दिस आर नॉट द नेम ऑफ द कंपनीज, दिस आर द नेम ऑफ द मेडिसिन। ये होता है जेनरिक सॉल्ट, कि भाई वो स्कीम, वो मेडिसिन का सॉल्ट क्या है, ओके। समटाइम्स व्हेन यू गो टू द
केमिस्ट आपसे पूछता है कौन से सॉल्ट की, आप बोलते हो भाई मुझे ना सिप्ला की मेडिसिन दे दो, मुझे तो रेनबेक्सी की मेडिसिन दे दो, वो कहते हैं जी रेनबेक्सी की नहीं है, सेम सॉल्ट में इसकी मेडिसिन है। अब चाहते क्या, आप चाहते हो कि इंडिया में क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन आर गिवन, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द रिड्यूस जो मेडिकल बर्डन है उसको आप कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाओ ऑन द कॉमन पीपल। और इसके साथ आप क्या चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेनरिक मेडिसिन ऑल्सो, कि आपको मेडिसिन के बारे में बेसिक पता हो, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑन दैट नोट द गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम, जहाँ पे जन औषधि स्कीम इसका पहला नाम था 2008 में, देन इट नेम्ड एज जन औषधि योजना 2015, बट इट गॉट नेम्ड एज भारतीय जन औषधि परियोजना इन द ईयर 2016 हियर। एवर टॉक अबाउट स्कीम, अब हम मेडिसिन की बात, तो मेडिसिन कहाँ से मिलती है, मेडिसिन एक केमिकल फॉर्मूला ही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, और कहाँ पे बनती है, फार्मेसीज में बनती है। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ India. As I told you, objective is to provide access to quality medicines for all the sections of population, but specific focus will be on the poor and deprived ones here. Target था to make 10,000, ठीक है, and to reach it to additional 10,500 by the year March 2025 है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 25,000 ही बन जाए अगले, टोटल इतने बना लें। The Kendra owners are provided so sale margin. So basically, the persons who are setting up this Jan Aushadhi Kendras, they are being provided a sale margin of 20% on MRP of each drug here. Then normal incentive क्या मिलता है आपको, 2.5 लाख मिलता है, वो 2.5 लाख से 5 लाख एनहांस कर दिया गया था। Where you get 15% of the monthly purchase, you get an incentive with an amount of 15,000 per month. That's a total incentive you could get here. स्पेशल इंसेंटिव का मिलता है टू दी वुमेन, SC/ST पीपल, इफ आई टॉक अबाउट डिसेबल्ड पीपल, sorry, दिव्यांग पीपल here, then we have any persons who are working in any setup ऑफ जन औषधि केंद्र इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, या फिर नीति आयोग में, हिमालयन स्टेट्स में, आइलैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, उनको एडिशनल इंसेंटिव मिलता है इन एडिशन टू नॉर्मल इंसेंटिव फॉर फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ कंप्यूटर्स एंड printers with an amount of rupees 2 lakh in addition here. Okay, तो that is about this जन औषधि केंद्र here. Important यही है कि किस की मिनिस्ट्री की स्कीम है और कितना इंसेंटिव मिलता है, ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम के ऊपर, उड़ान स्कीम के ऊपर। तो देखो उड़ान के रिसेंटली 8th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई है, तो क्वेश्चन सिंपल है, उड़ान का नाम क्या? उड़ान ना बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, बेसिक सी स्कीम है। इसका नाम अगर आपने ना, एक फिल्म आई है उड़ान, एक फिल्म भी है उड़ान, ठीक है जी, आई थिंक अक्षय कुमार की फिल्म है सरफिरा, वो भी इसी से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड क्या है, द पर्सन हु बेसिकली थॉट दिस प्रोसेस ऑफ, जिनके बेस पे उड़ान स्कीम भी बनी थी। सिंपल ऑब्जेक्टिव इज उड़े देश का आम नागरिक, वी वांट दैट एवरी इंडियन ऑफ इंडिया शुड ट्रेवल। तो जहाँ पे क्या किया आपने, कैप लगा दी ऑफ 2500 रुपीज़ कि अगर 1 घंटे की फ्लाइट है तो कैप है। बाकी यू वांट टू सर्व द अंडर सर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, कि मेन एयरपोर्ट नहीं, मेजर एयरपोर्ट में बहुत लोग जाते हैं भाई, वहाँ पे लेके जाओ जहाँ पे कनेक्टिविटी ही नहीं है, promote the aviation sector. So that notice Udan scheme was launched. The question is, was launched under the which ministry and is implemented by which organization? Very easy question. It is implemented by Ministry of Civil Aviation and works under Airport Authority of India here. Talking about Udan, as I told you, it is named as उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। It was started in the year 2016 और जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी बनी थी उसके अंदर ही ये स्कीम जो थी वो स्टार्ट की गई थी। इट्स अ स्कीम वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इम्प्लीमेंटेड बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल फॉर जनरल पब्लिक, जो मैंने आपको बोला, एंड डिवेलप द रीजनल एविएशन मार्केट। रीजनल एविएशन मार्केट का मतलब क्या है, जहाँ पे देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब दिल्ली से जयपुर का फ्लाइट, दिल्ली से जोधपुर का फ्लाइट, टूरिज्म सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी आप एविएशन सिस्टम्स बनाइए। दिल्ली टू अमृतसर फ्लाइट्स, that regional centers we want to develop the regional tourist places also, that's the thing here, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, आपने कैप अमाउंट रखा कि भाई यहाँ पे मुझे कैप दे दीजिए कि 2500 कैप, अगर आपकी 1 घंटे से कम की फ्लाइट है तो 1 घंटे से कम की फ्लाइट पे आप कैप रख दीजिए, ठीक है। देन व्हाट यू वांट इज, बिकॉज आप एविएशन मार्केट बढ़ाना चाहते हो रीजनल लेवल पे, तो यू वांट टू ऑपरेशनलाइज लॉट एंड लॉट ऑफ रूट्स हियर। सो द टारगेट वाज टू ऑपरेशनलाइज 1000 उड़ान रूट्स अंडर द स्कीम से, बिकॉज इट वाज स्टार्टेड इन 2016। 2017 में फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो 2017 में स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशनलाइज हुई थी। और इंपॉर्टेंट याद रखना, इट वाज इनिशियली इट वाज लॉन्च फॉर 10 ईयर के लिए लॉन्च की गई थी, बट
Now as per the recent report, government is planning to extend this scheme by 10 years. This is again being there that government is planning that it will be extending the scheme by 10 years. Recently the Minister of Civil Aviation has also said that we are planning to extend the scheme by 10 years. But देखिए अभी प्लानिंग मोड में, जब तक वो एग्जीक्यूट, जब तक वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा तब तक हम उसको नहीं लेके चलेंगे. बट इट इज़ अ थिंग. हो सकता है जब मैं आपके साथ, आप विद इन अ वीक अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्ट करें तो पता चल जाए कि ये स्कीम शायद 10 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाए. ठीक है. 1000 रूट्स बनाने थे. 100 अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स हैं जिनको हमें यहाँ पे रिवाइव करना है. वी विल बी यूजिंग हेलीपैड्स ऑल्सो, वाटर्ड एयरड्रॉम्स दैट वुड बी सेटअप इन द स्कीम हियर. देन एज पर दिस बजट ऑफ प्रीवियस ईयर 50 न्यू एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स हैव टू बी सेटअप हियर. ठीक है जी. टिकट्स जो हैं वो आपको अफोर्डेबल रेट पे देनी है. ठीक है. दैट इज टू 1 करोड़ पीपल एनुअली. दैट वाज द टारगेट अंडर द स्कीम हियर, टू 1 करोड़ पीपल एनुअली. ठीक है. और मैंने आपको बताया कितना था, 2500 रुपीज़ तक का चार्ज जो है वो दिया जाता है अंडर द स्पेसिफिक स्कीम है. 2500 रुपीज़ तक आपसे द मनी इज बिंग टेकन फ्रॉम द पर्सन अंडर द उड़ान स्कीम हियर. ठीक है. अब उड़ान के कई रूट्स हैं, बट आई वुड से गाइस दैट्स नॉट दैट मच रेलेवेंट बिकॉज इफ यू लुक एट द प्रीवियस पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन उड़ान द उड़ान के वर्जन्स, उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0. रिसेंटली उड़ान 5.2 वाज अनवील्ड, बट उसका ऑब्जेक्टिव भी सिंपल ही यही था, हमें एविएशन सेक्टर को और बढ़ाना है. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, वर्जन 1, 2, 3 एंड 4 दे आर एक्चुअली एक्सपेंडिंग द स्कीम. दैट इज द मेन थिंग. ठीक है. तो 2500 रुपीज़ का चार्ज था अगर आपकी फ्लाइट 1 आवर या 30 मिनट्स के, तो ये फ्लाइट जो आपको कुछ सीट्स हैं वो रिजर्व करनी पड़ेंगी फॉर द पर्सन हियर. ओके. So that was about Udan scheme. Now let's focus towards the final question for the day on the World Economic Outlook. तो IMF is a releasing body who which release World Economic Outlook, International Monetary Fund. ठीक है जी. तो IMF ने रिलीज किया है. आपको मुझे बताना है बिकॉज द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दिस सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स, प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे हैव प्रोजेक्टेड दैट the world will be growing at 3.2% in the year 2024 and 25, while the global growth is projected at what percentage? And it says over the next 5 years, India is expected to grow at 7% in 2024 and dash percentage in 2025. Again, a kind of a difficult questions because आपको शायद इस साल का ग्रोथ याद हो जाएगा. अब आपसे कुछ ग्लोबल ग्रोथ पे पूछ लिया गया है. इंडिया का भी रिसेंट याद होगा कि भाई कितना कहा गया, अब वो बोला गया अगले साल कितना हो जाएगा. So what is the answer is 3.1% and 6.5%. ठीक है. So what has done is IMF has said that it would be maintaining India's growth projection at only 7% here. The growth projection rate is 6.5%. That's for the next fiscal year. But what is the important thing they have done is उन्होंने बोला है देखो 6.5% 2025, 7% this year, and this year for 2023 उन्होंने बोला इंडिया 8.2% से ग्रो किया था in the year 2023 here. Now what used to happen is World Economic Outlook it used to release its database और जनरली ना 2 रिपोर्ट्स आते, तो ये एक साल में 2 बार आता है. ठीक है. एक इनका अप्रैल में आता है. ठीक है जी. और दूसरा जो है वो आपका अक्टूबर में आता है, सितंबर अक्टूबर में आता है. ठीक है जी. सो दिस इज द थिंग हियर. तो जो जनवरी वाला डाटा है, ठीक है, जनवरी वाला डाटा है वो जो जनरली जनवरी और जून के स्टार्ट में आता है और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं इसके अप्रैल और सितंबर में पब्लिश कर देते हैं. जनवरी वाला डाटा जनरली अप्रैल में पब्लिश होता है और जून वाला डाटा पब्लिश होता है सितंबर एंड अक्टूबर में. ठीक है. इंपॉर्टेंट क्या है, इफ अबाउट ग्लोबल ग्रोथ इट सेज global growth is expected to remain stable, but it says it is projected at 3.1% in the next 5 years. Okay. Then advanced economies it is 1.7% was in the year 2023, and 24 and 25 it would be 1.8% here. Emerging में कौन सी हैं, 4.2 is the thing here, and India के लिए 8.2% in 2023, 7% in 2024 and 6.5% in 2025, and these targets of India are very very important for the examination. Okay, so guys, this was all about your session for the day. I hope you have enjoyed this session of the morning with regards to your banking awareness. बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि मैं अगले सेशन में भी आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, तो आप मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक प्लीज़ आप हमें अगले सेशन में पढ़ा दीजिए, तो वी वुड बी लव टू कवर दैट टॉपिक ऑल्सो फॉर यू. ओके. इसके अलावा हम आपको नेक्स्ट वीक मिलेंगे विद द नेक्स्ट सेशन ऑफ द वीकली करंट अफेयर्स. और अगर आपने अभी तक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने वीकली सेशंस नहीं देखे हैं तो आप वो भी एक बार जरूर देखें ताकि एक सिंक बन जाए आपका विद द करंट अफेयर्स हियर. ओके. सो
एंड स्टिल अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, आप कोई डाउट पूछना चाहते हो या आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू कुड सिंपली ड्रॉप अस एन email that is at hello@arutab.co.in, or you could have a call with us on the number that is 81462 07241. So on that note guys, I wish you all the best for the examination. Keep working hard and keep preparing hard. Bye bye.